Myself Niharika Bapna and I am from Government Vikram College, Khajur. Today we are discussing about the topic depreciation of financial accounting. The term depreciation refers to reduction in or loss of quality or value of fixed assets through wear and tear, effusion of time, obsolescence through technology and market changes, or from any other cause. Depreciation takes place in case of all fixed assets with certain possible exceptions, example land and antiques etc. डेप्रिसिएशन का सिंपली मीन क्या होता है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में रिडक्शन होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी में लॉस होता है लगातार यूजेज होने के कारण उसका टाइम का पासेज होने के कारण और ऑब्सोलेसेंस होने के कारण ऑब्सोलेसेंस का मीनिंग होता है आउटडेटेड होना या ऑब्सोलेट होना फिक्स्ड एसेट्स भी एक टाइम के बाद आउटडेटेड या ऑब्सोलेट हो जाती है क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी एंड मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं although the process may be invisible or gradual डेप्रिसिएशन की जो प्रोसेस होती है वो विजिबल नहीं होती इनविजिबल होती है और धीरे धीरे होती है डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस irrespective of regular repairs and proper maintenance of asset. Unless it is charged against revenues, we cannot say that the business income has been ascertained properly. Depreciation does takes place irrespective of regular repairs. इसका मतलब होता है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा है डेप्रिसिएशन होगा ही असेट का unless it is charged against revenue we cannot say that the business income has been ascertained properly अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे बिजनेस इनकम के अगेंस्ट तो फिर जो बिजनेस इनकम आएगी वो प्रॉपरली असर्टेन नहीं होगी ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस ईयर के प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट उस ईयर के एक्सपेंसेस भी चार्ज करने चाहिए मतलब जिस ईयर की इनकम है उस ईयर एक्सपेंस भी चार्ज होने चाहिए अगर हम इनकम चार्ज करते हैं उस मशीन कोई मशीन है फिक्स्ड असेट से उससे होने वाली इनकम चार्ज करते हैं तो उस मशीन की वैल्यू को भी हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा हर ईयर में हमें उसका एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा तभी मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल होगा This is because of the fact that the use of long-term asset tends to consume their economic value and at some point of time this asset become useless. Depreciation क्यों लगाना ज़रूरी है क्योंकि हर asset की एक economic value होती है एक life होती है और उस time के बाद वो useless हो जाती है Depreciation is the allocation of depreciable amount of an asset over its estimated useful life. Depreciation मतलब अलोकेशन करता है स्प्रेड करता है डेप्रिशिएबल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ असेट उसकी जो यूजफुल लाइफ है उस पर उस पूरे अमाउंट को अलोकेट कर देता है अकॉर्डिंग टू AS6 depreciation is a measure of wearing out consumption or other of value of a depreciable asset arising from use effusion of time or obsolescence through technology and market changes AS6 होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 वो बताता है हमें अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है मेजर ऑफ वियरिंग आउट कंजम्पशन ऑफ अदर वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज इफ्यूजन ऑफ टाइम मतलब ये यही बता रहा है कि असेट डेप्रिशिएट होती है टाइम के पासेज के साथ ऑब्सोलिसेंस के साथ और मार्केट और टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं उससे अब हम बात करेंगे depreciation, depletion, obsolescence and amortization. For normal person, it's are interchangeably used. The term depreciation, depletion, amortization are used often interchangeably. However, these different terms have been developed in accounting usage for describing this process for different types of assets. These terms have been described as follows. Depreciation. Depreciation is concerned with charging the cost of man-made fixed assets to operation and not with determination of asset value for balance sheet. In other words, the term depreciation is used when expired utility of physical asset,
building, machinery और equipment is to be recorded. डेप्रिसिएशन किस फिक्स्ड एसेट के काम में आता है? जैसे मशीन है, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन सारी फिक्स्ड एसेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। अगर हम उनकी वैल्यू में रिडक्शन करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ऐसे डिप्लीशन, डिप्लीशन the term is applied to the process of removing an available but irreplaceable resource such as extracting coal from coal miner or oil out of oil well. Depletion differs from depreciation in that the former implies removal of natural resource while the latter implies a reduction in the service capacity of an asset. Depreciation fixed asset के काम में आता है, उसकी फिक्स्ड एसेट की सर्विस कैपेसिटी कम होती है इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज लगाते हैं, जैसे बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी। ऐसे डिप्लीशन कोल और माइंस, इन सब को जब इनके नेचुरल रिसोर्स इररिप्लेसेबल होते हैं, वो कम होते हैं, तब हम वर्ड डिप्लीशन यूज करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोल कोल डेप्रिशिएट हो रहा है या कोल माइन डेप्रिशिएट हो रही है, ऑयल वेल डेप्रिशिएट हो रहा है। हम हमेशा इसके लिए डिप्लीशन वर्ड यूज करेंगे। अमोर्टाइजेशन, ऐसे ही जब इंटेंजिबल असेट्स होती है लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एटसेट्रा, तो इन सब केसेस में हम वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करते। जब इनकी वैल्यू राइट ऑफ करते हैं तब हम इन्हें बोलते हैं अमोर्टाइज। इंटेंजिबल असेट्स अमोर्टाइज होती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट्स इज टर्म्ड एज अमोर्टाइजेशन। Intangible assets like patent, copyright, goodwill are recorded at cost in the books of account. Many of these assets have a limited useful life and are thereof written off. Obsolescence, obsolescence मतलब outdated होना या उसका अब यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया है, मार्केट डिमांड चेंज हुई है और लीगल रेस्ट्रिक्शंस है। नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की नीड क्यों है? इसका पर्पस क्या है? टू ascertain the profit or losses. The true profit or losses could be ascertained when all costs of earning revenue have been properly charged against them. Fixed assets like building, plant and machinery, furniture, motor vehicle, etc. are important tool in earning business income. Depreciation is an item of business expense and must be provided for proper matching of cost with revenue. अगर हम बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स जो रहती है, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर, ये बिजनेस इनकम का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इनसे हमें बिजनेस इनकम होती है, तो इसके अगेंस्ट हमें बिजनेस एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा। टू शो द असेट एट इट्स रीजनेबल वैल्यू, the asset decrease in their value over a period of time on account of various reasons such as passage of time, constant use, accident, etc. Asset की वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है, नॉट डिप्लीशन, क्योंकि passage of time होता है, उसका लगातार यूज होता है और एक्सीडेंट्स होते हैं। Therefore, if the depreciation is not charged, then the asset will appear in the balance sheet at the overstated value. तो अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं एसेट का, तो वो बैलेंस शीट में जब अपीयर होगी तब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर अपीयर होगी और ओरिजिनल कॉस्ट ओवर स्टेटेड होगी, क्योंकि आज उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। दिस प्रैक्टिस इज अनफेयर एज द बैलेंस शीट वुड फेल टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का पर्पस होता है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और अगर हम बैलेंस शीट में असेट ओवर स्टेटेड दिखाएंगे क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। इसे विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, बिजनेस एसेट बिकम यूजफुल एट द एक्सपायरी ऑफ देयर लाइफ एंड देयरफॉर नीड रिप्लेसमेंट द रिसोर्सेज सो सेव्ड। बिजनेस एसेट क्या होती है? एक टाइम के बाद यूजलेस हो जाती है और उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। If set aside is in each year, say be adequate to replace it at the end of life of the asset.
अगर हमें मतलब डेप्रिसिएशन हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि हम एक फंड अलग रखते जाते हैं ताकि हम रिप्लेस कर सके उस मशीन को। टू रिड्यूस इनकम टैक्स, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस है। इफ टैक्स इज पेड ऑन द बिजनेस इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन then it will be in excess to actual income tax. This is a loss to business. Thus, for calculating tax, depreciation should be deducted from income similar to other expenses, as depreciation is a chargeable expense and result in tax benefit. अगर हम इनकम शो कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक्सपेंस शो नहीं कर रहे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अगर हम क्रेडिट ज़्यादा अमाउंट कर रहे हैं और डेबिट में उसका एक्सपेंस शो नहीं कर रहे तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की वैसे तो काफ़ी सारी मेथड है, बट हम यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट मेथड की बात करेंगे। There are various methods of calculating depreciation. Some of the most commonly used methods are as follows. The important method is straight line method or written down value method. Straight line method. This is also known as fixed installment method. Under this method, the depreciation is charged on the uniform basis after year. The straight line method of depreciation is a common method of depreciation where the value of fixed asset is reduced over its useful life. स्ट्रेट लाइन मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, मतलब इस मेथड में डेप्रिसिएशन एक जैसा चार्ज होता है। Straight line method of depreciation is common method of depreciation where the value of fixed asset is reduced over its useful life. Straight line method में क्या होता है कि जो भी अमाउंट होता है, जो भी कॉस्ट होती है फिक्स्ड एसेट की, वो उसकी जो भी यूजफुल लाइफ होती है 5 years 4 years जो भी, उस पर स्प्रेड कर देते हैं यूनिफॉर्मली। In this method, an asset's cost is depreciated the same amount for each accounting period. स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम होता है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट है 100 रुपीज और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से। तो 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ हम हर ईयर में चार्ज करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। इट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल द ईयर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में क्या है, जेन ब्रोस एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1st July 2018 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at 10% per annum of the original cost every year. Books are closed on 31st December every year. जेन ब्रोस ने एक्वायर करी एक मशीन 1 जुलाई 2018 को जिसकी कॉस्ट है 14 लाख और उसके इंस्टॉलेशन पे 1 लाख स्पेंड किया है। अब ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ मशीन, उस पर भी हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा, वो भी कॉस्ट का पार्ट है। फर्म कौन राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। फर्म अपनी बुक 31st दिसंबर को क्लोज करता है। रिक्वायरमेंट क्या है, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईयर 2018 और 19। 14 लाख कॉस्ट है और मशीन 1 जुलाई को खरीदी है और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर।
सो 1 जुलाई से 31 दिसंबर ये हुए 6 मंथ। सो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर 6 मंथ। सबसे पहले मशीन खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14 लाख, और अगर मशीन पे हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस स्पेंड किए तो वो भी मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट है। टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। By depreciation account, at the year end, we charge depreciation on straight line method at 10%. So 15 lakh का 10% होता है 1,50,000. But in this case, the machinery is purchased on July 1. So the machine is used for 6 months. So depreciation is charged for 6 months. 1,50,000 इसका depreciation आ रहा है 10%. 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम, तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे लग जाएगा जो कि होता है 75,000। और बैलेंस क्या बचेगा 15 लाख माइनस 75,000, 14 लाख 25,000। ये जो बैलेंस है एसेट का ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 14 लाख 25,000। नेक्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट जो 15 लाख है उसी पे 10% लगेगा 1,50,000, और 14,25,000 माइनस 1,50,000 इक्वल्स टू 12,75,000 इसकी बैलेंस बचेगा। ऐसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमने क्या करा था, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में होगा टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट 75,000, फर्स्ट ईयर में 75,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, और डेप्रिसिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसका बैलेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 75,000। और नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1,50,000, इसको भी एट द ईयर एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। अब हम बात करते हैं reducing or diminishing balance method or written down value method की। Under this system, a fixed percentage of the diminishing value of the asset is written off each year so as to reduce the asset to its residual value at the end of life. Repairs and small renewals are charged to revenue. This method is commonly used for plant, fixtures, etc. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट होती है उस पर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फिर जो उसका बैलेंस बचता है जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे कि एसेट की कॉस्ट मान लो 100 रुपये थी और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 10 रुपीज़, 10% ऑफ 100, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 100 माइनस 10, 90 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर में 10% अमाउंट लगेगा जो कि है 9 रुपीज़। अब ये जो 10% लगा है ये 100 पर नहीं लगेगा, ये लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू जो कि है 90, 10% ऑफ 90, 9 रुपीज़। सो बैलेंस बचा 81। एंड ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में जो 10% लगेगा वो 100 पर नहीं लगेगा, उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 81 उस पर लगेगा 8.1 एंड सो ऑन। The value of asset can never be completely extinguished, which happens in the earlier explained straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड में पूरी जो वैल्यू थी अमाउंट था वो यूजफुल लाइफ में चार्ज हो जाता है, एलोकेट हो जाता है, पर इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रिमेनिंग रहेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। Jane Cross acquired a machine on 1st July 2018 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at 10% per annum every year. The books are closed on 31st December.
शो द मशीनरी अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। फॉर ईयर 2018 एंड 19 मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज की 14 लाख, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख, तो 15 लाख इसकी कॉस्ट हो गई। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15 लाख का 10%, पर ये 6 मंथ के लिए, ये जुलाई टू दिसंबर 31, सो इसमें 75,000 आएगा। 1,50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 75,000। उसमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए 14,25,000। 14,25,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 दिसंबर एट ईयर एंड, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 14,25,000। अभी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने 15 लाख पर चार्ज किया था डेप्रिसिएशन, बट इन दिस केस वी चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो कि है 14,25,000। 14,25,000 का 10% 1,42,500, और इसमें बैलेंस बचेगा 12,82,500। और ऐसे ही अगर हमको 2020 का बनाने को बोलते तो हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं करते, रिटर्न डाउन वैल्यू पर चार्ज करते, जो कि है 12,82,500 का 10%।